Hello students, in previous lecture we had completed the exercise 3.1 which is based on the principal solution of the trigonometric equation. Now we will proceed further and we will see the topic Cartesian coordinate and the polar coordinate. Now see what is Cartesian coordinate. Cartesian coordinate is also called as rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. Now what is rectangular coordinate system? See here. This is our x-axis. This is our y-axis. Okay. These values represents the value of x and these represents the value of y. Okay. So if I say there is one point whose coordinate is x comma y, that means this point is at x distance from here and y distance from here. Okay, so this is the position of point P, x comma y. Okay, so what is rectangular coordinate system? It represents the position of a point by x comma y, where x is distance of point from x-axis and y is distance of point in y-axis. Okay, so for example a point is there here 3, 2. Suppose I want to plot 3, 2. So I will plot 1, 2, 3, 1, 2, 3. So this point P 3, 2, that means what? X is 3, y is 2. So this point represents the 3, 2. So this is nothing but Cartesian coordinate system, or you can say rectangular coordinate system. Okay, so it is very simple. Now one more way is there to present the point. Okay, so that is called as polar coordinates. Polar coordinates is nothing but the same way of representation of a point as in Cartesian coordinate system. Okay, so in polar coordinates we represent the point by using r comma theta, where r is distance of point from origin and theta is angle made by the point with the positive direction of x-axis. What is r? r क्या रहेगा? r is distance of point from origin. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन ये आर रहता है और थीटा रहता है एंगल मेड बाय द लाइन आर, जो लाइन जो आर रिप्रेजेंट करता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. नाउ सी व्हाट इज दैट. I want to plot this point r comma theta. So that this point is at distance of r from the origin. अब distance of r from the origin तो बहुत सारे point हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब r distance एक distance है, suppose 3 है तो 3 के डिस्टेंस पे तो हम लोग ऐसे बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, बट 3 यानी r के डिस्टेंस पे हम लोग को वही पॉइंट चाहिए जो x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा. सो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट r कॉमा थीटा. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. फॉर एग्जाम्पल p इज रिटर्न r थीटा. यहाँ पे r फॉर एग्जाम्पल 4 यूनिट्स है और थीटा बता रहा है सपोज 75 डिग्री. ओके, अब मुझे इस पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ आई विल रिप्रेजेंट इट? ये आर थीटा को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है. सो ओके, तो सेंटर से हम लोग आर डिस्टेंस पे एक लाइन लेने वाले हैं. सो आर डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 4. तो अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर लेके बना रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी कहीं भी बन सकता है, बट हम लोग को एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर की लाइन वहीं बनाना है जहाँ पे क्या बनने वाला है? 75 डिग्री. तो फॉर एग्जाम्पल 75 डिग्री ये लाइन पे कहीं बनने वाला है. ये 75 डिग्री मैंने बना दिया. अब 75 डिग्री की जो लाइन है इस पे मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक का ही चाहिए. सपोज ये मेरा 4 सेंटीमीटर है. ओके, 4 है. सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट
4,75 डिग्री. ओके, सो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वी नीड टू थिंग्स, एक्स एंड वाई, पोजिशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पोजिशन ऑन वाई एक्सिस, तभी हम लोग वो पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं. Similarly, in polar coordinates, we need two things, r, theta. r is distance of the point from the origin. अभी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, बट हमको वही पोजीशन पे बनाना है जहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बन रहा है. ओके, पोलार कोऑर्डिनेट में वन मोर थिंग, पोलार कोऑर्डिनेट का थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 pi. ओके, now I will see the relation between Cartesian coordinate and the polar coordinate. Now what is the relation between Cartesian coordinate and polar coordinate? Very simple. See, okay, this is one point P whose x coordinate is x and y coordinate is y. Okay, सेम ग्राफ पे मैं दोनों प्लॉट कर रही हूँ, कार्टेशियन भी प्लॉट कर रही हूँ और पोलार भी. और अगर मैं पोलार के हिसाब से देखूंगी तो कैसे आएगा, ये पॉइंट P है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है और यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. सो इसको कंप्लीट करते हैं. दिस इज y, दिस इज x. सो क्लियरली यू कैन सी दैट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस इज वन रिलेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज, और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, r इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज r इज डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. वन मोर थिंग, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो क्लियरली यू कैन से y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा एंड x इज इक्वल्स टू r cos थीटा. Now divide this, y upon x, r sin theta upon r cos theta, that is tan theta. Okay, so these are the relation between Cartesian coordinate and the polar coordinate. पहले तो ये यूज होता है, फिर नेक्स्ट ये भी है, x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta and the tan theta is equals to y by x. अभी ये रिलेशन कहाँ यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक पॉइंट है जो कार्टेशियन में गिवन रहेगा और हम लोग को वो पॉइंट फाइंड करना है इन पोलार सिस्टम, या फिर पॉइंट पोलार सिस्टम में है और हमको फाइंड करना है उसको कार्टेशियन सिस्टम में. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज वेरी सिंपल. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज दैट जो कि हम लोग बहुत सालों से ही कर रहे हैं, मतलब हम 8 या 9 स्टैंडर्ड से ही सब चालू जाता है ग्राफ का. अभी उसी में एक अपडेटेड है पोलार कोऑर्डिनेट, 11th में था, अभी पता भी होगा. पोलार कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट P की पोजीशन दिखाता है बट इन सम अदर वे, और वो वे क्या है, r कॉमा थीटा, वेयर r क्या होता है, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस. अब ओरिजिन से उस डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं बट हम लोग को स्पेसिफिकली वही पॉइंट लेना है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3.2. Exercise 3.2, question number 1. Find the Cartesian coordinate of the point whose polar coordinates are, मतलब polar coordinates given है, हम लोग को कार्टेशियन फाइंड करना है. whose polar coordinates are. Okay, so very first question is root 2 comma pi by 4. This is polar coordinate. Okay, solution. Root 2 comma pi by 4. This is r theta given polar coordinate. ये पोलार कोऑर्डिनेट गिवन है, हम लोग को इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. ओके, सो r इज रूट 2 एंड थीटा इज पाई बाय 4. सिंस वी नो दैट x is equals to r cos theta, so r is root 2, theta is pi by 4, so theta pi by 4 मतलब 45 होता है, cos 45 होता है 1 by root 2, so it is 1. y is equals to r sin theta, r is root 2, this is sin pi by 4, sin pi by 4 means 45, sin 45 1 by root 2 होता है, so it is 1. So therefore the required Cartesian coordinate is, therefore the required Cartesian coordinate is
x कॉमा y 1 कॉमा 1, ये रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। 3/4 comma 3π/4. Okay, this is polar coordinate and we want to find the Cartesian coordinate of this. Okay, solution: given polar coordinate 3/4 comma 3π/4 r comma theta, r is equals to 3/4, थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। करेक्ट, r है, थीटा है, अभी हम लोग को एक्स वाई निकालना है। ओके, नाउ आई वांट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, सो सिंस वी नो दैट x is equals to r cos theta, so r is here 3/4 and theta is cos 3π/4। अभी 3π/4 हमको डायरेक्ट नहीं पता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉर्मूले तो हम लोग को सब पता ही है, अलाइड एंगल। कॉस को मुझे कॉस ही रखना है ना, कॉस को हम लोग को कॉस ही रखना है, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई, और पॉजिटिव भी रहना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2π माइनस 3π/4। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5π/4 नहीं, ये तो फिर और बड़ा हो जाएगा। नहीं, हम लोग और देखते हैं, 3/4 है। ठीक है, एंड दिस इज कॉस। नाउ सी 3 टाइम्स ऑफ π/4 को थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। हम लोग को इसको स्प्लिट करना है कि एंगल थोड़ा छोटा आ जाए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आए, जो हम लोग इजीली कर सकें। आई थिंक इसको हम लोग पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना, पाई माइनस π/4। ज़रा मैथमेटिकली चेक करो, 4π माइनस π/4 बराबर आ रहा है ना 3π/4। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट हम लोग ये जो एंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल 120 लिखा हुआ रहता है तो हम लोग उसको 90 + 30 ऐसा लिख देते हैं ना, तो वैसे ये जो एंगल है 3π/4, इसको हम लोग ऐसा थोड़ा लिख रहे हैं पाई माइनस π/4 विच इज सेम। अगर हम लोग पाई माइनस π/4 को कैलकुलेट करेंगे तो 3π/4 ही आएगा। ओके, सो 3/4। नाउ सी कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई, रेशियो विल नॉट चेंज, दैट मीन्स कॉस का कॉस ही रहेगा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कॉस विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे वी विल राइट द रीजन, सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3π/4 है, तो हम लोग को इसको ऐसे कुछ लिखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आए जिसको हम लोग इजीली वैल्यू रख सके। सो 3π/4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4 and cos pi minus theta is minus cos theta. So minus 3/4 cos pi/4. So minus 3/4, what is cos 45? 1/√2. So minus 3/4 √2. Okay. Y is equals to r sin theta. So r is 3/4 sine of 3π/4. Again 3/4 sine of 3π/4 can be written as pi minus π/4, but sine of pi minus theta is sin theta. Sine of pi minus theta, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है pi minus theta और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। So what is 3π/4? That means 345 1/√2. So 3/4 √2. So the required Cartesian coordinate is x comma y. X is minus 3/4 √2. Y is 3/4 √2. So you can see this x coordinate is negative and y coordinate is positive. x negative, y positive. ये कहाँ पे रहता है? x negative है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ रहता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। सो अभी हम लोग इसको भी देख के चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है क्या।
पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45, करेक्ट। पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 और पाई बाय 4 मीन्स 45। ये 45 का क्या है 3 टाइम्स, सो 45 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 135, बराबर। 45 का 3 टाइम्स होता है 135 और 135 आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि 135 कहाँ पे आएगा 90 से ज़्यादा और 180 से पहले, यानी किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पोलार के हिसाब से ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कैसे, मतलब ये पॉइंट क्या है 3/4 डिस्टेंस पे है, 3/4 डिस्टेंस पे है और यहाँ से एंगल कितने का बना रहा है 135 का, यानी 3π/4 का। ये रहा वो पॉइंट, मतलब सेंटर यानी ओरिजिन से 3/4 डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस के साथ ये पॉइंट से जुड़ने वाली जो लाइन है वो एंगल कौन सा बना रही है 135 यानी 3π/4। और अगर हम लोग कार्टेशियन में देख रहे हैं तो सेम चीज़ है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है जिसका x आता है -3/4√2 और y क्या आता है 3/4√2। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज हाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलार कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन को पोलार में कैसे करते हैं। ओके, so today I will stop here. In the next lecture I will show you how to convert the Cartesian coordinate in the polar coordinate. Thank you.